Okay, so Assalamu alaikum everyone. We would be continuing from where we had left in the last class. So we basically discussed anaerobic respiration. That is, if there is no oxygen available, we said that हमारे पास जो पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है दैट कैन नॉट टेक प्लेस इफ हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन गेट्स blocked, it gets saturated, due to which the electrons are unable to move, their energy is not lost, and therefore the proton gradient is not established, due to which chemiosmosis cannot take place. And since chemiosmosis cannot take place, हमारे पास ATP synthesis नहीं हो रहा होता. We also discussed that because the ETC is blocked, this step, this first step of the oxidation of NADH is not taking place. And because NADH is not getting oxidized, we are unable to regenerate NAD+. Now, NAD+ is required for glycolysis, link reaction, Krebs cycle. So, no NAD+, no link reaction, no Krebs cycle. However, we discussed that glycolysis can still take place. How is that so? हमारे पास जो पूरा ग्लाइकोलिसिस का मैकेनिज्म होता है ये कहाँ पर हो रहा होता है दिस इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म and because the link reaction Krebs cycle and oxidative phosphorylation has been blocked because of the deficit of oxygen, what happens is this pyruvate is unable to enter the mitochondria, and because it is unable to enter the mitochondria, it enters into either the lactic acid fermentation cycle or the अल्कोहल fermentation cycle, डिपेंडिंग कि हम किस ऑर्गेनिज्म की anaerobic respiration को देख रहे हैं. इन mammals हमारे पास lactic acid या lactate fermentation होती है. In plants and in yeast cell we observe ethanol fermentation. Any questions about anaerobic respiration so far? Last class में clear हो गई थी anaerobic respiration सबको? Great. Okay. अच्छा. So, as part of our syllabus, we also have to discuss the adaptations of rice plants for being able to perform anaerobic respiration in their roots. Now, this is a rice plant. इसकी जो हमारे पास yeah, till the formation of pyruvate, it's just the same glycolysis. हमारे पास glycolysis से ही pyruvate बनता है. Glycolysis को continue करने के लिए हमें NAD+ वापस चाहिए. NAD प्लस वापस करने के लिए हमारे पास हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन करवाते हैं बिकॉज ऑक्सीडाइज्ड NAD कहाँ पर बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयरफॉर हमारे पास NAD प्लस नहीं है NAD प्लस नहीं है सो ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकता लिंक रिएक्शन नहीं हो सकता Krebs साइकिल नहीं हो सकती हाउएवर व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करवाने के लिए the pyruvate enters the lactic acid fermentation cycle or the ethanol fermentation cycle जिसमें हमारे पास जो NADH होता है उसके जो हाइड्रोजन्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन जिसकी वजह से हमारे पास लैक्टिक एसिड और इथेनॉल बन जाता है लैक्टिक एसिड और इथेनॉल को बनाने के लिए NADH के प्रोटॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं एंड NAD प्लस हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है ठीक है आई थिंक सो दिस वाज आस्क्ड बाय आमना आप क्लियर हो गई ये बात परफेक्ट अच्छा the last part as in the regeneration of a NAD plus ओके अच्छा हमारे पास सी इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीटली हम एक वैक्यूम में नहीं चले गए राइट हमारे पास ऑक्सीजन डेफिसिट का होने का मतलब ये है देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इट डज नॉट मीन ऑक्सीजन इज कंप्लीटली फिनिश्ड सही है हम कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अर्थ पे ही रह रहा है ना सो अर्थ पे एटमोसफियर है वैक्यूम नहीं है एटमोसफियर है तो एयर अवेलेबल है anaerobic pathway कब switch on होता है anaerobic pathway तब switch on होता है when there is less oxygen aerobic respiration पहले हो रही होगी and through that aerobic respiration हमारे पास NAD plus oxidative phosphorylation से हमें मिला होगा however अब ये हो गया है that oxygen थोड़ी सी कम हो गई है ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टॉप हो गई है लिंक रिएक्शन Krebs साइकिल स्टॉप हो गया
सो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हुआ होगा। हाउएवर हमारे पास अब ऑक्सीजन कम हो गई है। अब जब ऑक्सीजन कम हो गई है, पायरुवेट कैन नॉट एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, and because the pyruvate cannot enter the mitochondria, it's like, what do I do now? मैं तो aerobic pathway में enter नहीं कर पा रहा। So for that, when this happens, तब हमारे पास lactic acid fermentation बनती है। It's not like कि anaerobic respiration vacuum में हो रही है। Anaerobic respiration तब होती है जब aerobic respiration कम हो जाती है। Is this clear to all of you? यस, द फर्स्ट टाइम जब इनिशियली बिल्कुल हमारे पास ग्लाइकोलिसिस हुआ होगा, तब हमारे पास NAD प्लस कहाँ से आया होगा? NAD प्लस डेफिनेटली वहां से आया होगा ना, आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ऑक्सीडाइज हो गए। सो हमारे पास पायरुवेट वाला स्टेप हुआ होगा। हाउएवर हमारे पास जब एक ऑक्सीजन डेफिसिट या लैक ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट हो जाती है, तब हमारे पास पायरुवेट इज अनेबल। आर यू गाइस एबल टू हियर मी नाउ? I am so sorry. Actually, इंटरनेट का काम हो रहा है ऊपर and I have to switch to my hotspot. Just मैं हॉटस्पॉट पे स्विच कर रही हूँ. Just a second. Okay. I hope now there is no issue. अच्छा, सो मैं पायरोवेट एक्सप्लेन कर रही थी कि इनिशियली ग्लाइकोलिसिस हुआ, जिसके लिए NAD प्लस कहाँ से आया? NAD प्लस आया ऑक्सीडाइज होके फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नाउ देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द बॉडी, जिसकी वजह से दिस पायरोवेट ओवर हियर is unable to enter, it's unable to enter the mitochondria. And because it is unable to enter the mitochondria because of a deficit of oxygen, it would enter the anaerobic pathway. Is this clear? एनारोबिक पाथवे तब स्विच ऑन होता है जब हमारे पास ऑक्सीजन कम हो जाती है। उससे पहले एरोबिक पाथवे ही चल रहा होता है। इस पॉइंट पर हमारे पास पायरुवेट was not able to enter the mitochondria because there was an oxygen deficit in the body, and therefore it entered the lactic acid fermentation cycle. Now is this clear, Amar? Yes, you just have to memorize these steps, Anya. I'm just waiting. Can it enter the anaerobic pathway from, अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है, दैट मीन्स एरोबिक पाथवे चल रहा है। एरोबिक पाथवे अगर चल रहा है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो उसको एनारोबिक पाथवे में एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनारोबिक पाथवे हमारा स्टार्ट ही तब होता है व्हेन देयर इज एन ऑक्सीजन डेफिसिट इन द बॉडी। ठीक है, ऑक्सीजन डेफिसिट के टाइम पर खाली एनारोबिक पाथवे स्विच ऑन होता है, अदरवाइज हमारा नॉर्मल एरोबिक पाथवे चल रहा होता है, बिकॉज उससे हमारी बॉडी की जो डिमांड ऑफ ATP है वो मीट कर रही होती है। सही है। अगर ऑक्सीडेटिव, परफेक्ट, क्लियर हो गया सबको? anaerobic pathway तभी switch on होगा when there is an oxygen deficit in the, okay. Now अब हम बात करते हैं राइस प्लांट्स की। For those of you who've studied O level पार्क स्टडीज में राइस प्लांट्स पढ़ते थे हम लोग एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। एंड राइस प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, राइस प्लांट्स की ग्रोथ इज इन सच अ वे दैट हमारे पास दे आर बेसिकली इमर्स्ड इन वाटर। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि हमारे पास जो राइस प्लांट्स हैं, जो हाफ ऑफ देम आर इमर्स्ड इन द वाटर, तो उनकी जो रूट्स होती हैं ना, दे आर बेसिकली सबमर्ज्ड और इमर्स्ड इन द वाटर। ना इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? लेट्स से ये हमारे पास वाटर है, oxygen has to reach the roots. Now you all would be familiar by the fact that हमारे पास oxygen is barely soluble, almost insoluble होती है। So the problem over here is because the rice plant is submerged in water, it is very hard for the oxygen to diffuse and reach the roots। ठीक है, roots तक oxygen का पहुंचना, because ये पूरे एरिया में क्या है, पानी है, and oxygen is barely soluble in water, due to which this oxygen is not readily available for the roots. So हमारे पास roots में क्या होता है? In the roots are adapted to undergo anaerobic respiration,
एंड बिकॉज ये प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में कौन सी वाली हो रही होगी, इथेनॉल फर्मेंटेशन हो रही होगी। हाउएवर हमारे पास, हमें पता है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से इनफ एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता। नो, राइस प्लांट्स हमारे पास पैडीज में ही ग्रो करते हैं, इस फ्लडेड फील्ड्स में ही ग्रो करते हैं, बिकॉज विदाउट दैट दे कैन नॉट ग्रो। सो जो इनिशियल हमारे पास राइस प्लांट्स होते हैं, दे हैव टू ग्रो इन दीज फ्लडेड फील्ड्स नोन एज पैडीज, ठीक है, वरना वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। वाटर इज essential for the growth of rice plants, otherwise they cannot grow. So इनकी जो रूट्स होती हैं, they can perform anaerobic respiration. ऑक्सीजन बेयरली सॉल्युबल इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन इज नॉट अ पोलर गैस ना, ऑक्सीजन पोलर नहीं होती, इस वजह से इट्स बेयरली सॉल्युबल। हमारे पास वाटर सॉल्युबल क्या चीज होती है, जो चार्ज चीजें होती हैं या जो पोलर चीजें होती हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट पोलर, दैट्स व्हाई इट्स बेयरली सॉल्युबल। Acha. However, we still want aerobic respiration to take place. We still want oxygen to reach the roots, क्योंकि हमारे पास aerobic respiration में definitely ज़्यादा ATP produce होता है। ज़्यादा ATP produce होता है तो more energy is there for the growth of the plant. So एक तो हमारे पास roots adapted हैं कि ऑक्सीजन अगर उन्हें ना भी मिले तब भी वो anaerobically respire करके क्या कर सकते हैं, ATP बना सकता है। However, there has to be some other adaptation as well थ्रू विच हमारे पास कहीं से ऑक्सीजन जो इन रूट्स तक है वो पहुंच सके ना। जो हमारे पास स्टेम है, दिस स्टेम दिस स्टेम वुड हैव पोर्स, या हमारे पास गैप्स होंगे जहां से हमारे पास एयर एंटर कर सकती है, एयर एंटर कर सकती है और हम क्या कहते हैं, रूट्स तक जा सकती है। सो हमारे पास बहुत छोटे छोटे सॉफ्ट टिश्यूज होंगे जो कि एयर होल्स या एयर गैप्स होंगे इन दिस स्टेम। लेट मी ड्रॉ दीज। सो समथिंग लाइक दिस, हमारे पास ऐसे स्मॉल पोर्स होंगे इन द स्टेम, जिनको हम क्या बुलाते हैं, जिनको हम बुलाते हैं एरेनकाइमा। Erenchyma are basically soft plant tissues which have air spaces, and these air spaces is where हमारे पास जो ऑक्सीजन है, it can diffuse and reach the roots without coming in contact with water. उसको पूरे water से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। water में क्या कहते हैं, because बहुत slow diffusion होती है ऑक्सीजन की, बहुत partially soluble होता है ऑक्सीजन। that is why जो ये water barrier है, इस water barrier को किस तरह से avoid करके ऑक्सीजन roots तक जा सकता है, वो इन air holes या air gaps जो stem के अंदर present है, उन air gaps के क्या कहते हैं, थ्रू हमारे पास oxygen can reach the roots. Sanya, these erenchymas are actually present in the stem. तो stem में ये छोटे छोटे holes होते हैं, gaps होते हैं, which allows the movement of oxygen from the air all the way down to the roots. सही है? Also, एक और adaptation हमारे पास जो होती है rice plants की, वो ये होती है, you can see that although rice plants are submerged in water, a lot of the rice plants are major part of the rice plants is above the water. That is, उनकी जो stem की growth होती है, जो stem होता है, वो इस तरह से adapted होता है कि उसकी जो growth है या उसकी जो height है, वो बहुत acceleratedly grow करे। Why is that so? It ensures कि जो majority section है rice plant का, वो पानी से ऊपर हो। So the stem is also adapted कि जो उसकी growth है वो बहुत exponential, बहुत accelerated हो, so that most of the section of the rice plant is above water, so that वो आराम से ऑक्सीजन इनटेक करके एरोबिकली रिस्पायर कर सके। एक तो हमारे पास जो रूट्स होती हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, देन हमारे पास एरेनकाइमास आर प्रेजेंट टू अलाउ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज ऑल द वे डाउन टू द रूट्स, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो तीसरी अडेप्टेशन होती है, दैट इज एक्सिलरेटेड स्टेम growth. This accelerated stem growth ensures that most of the section of the rice plant is above the water. Yes, Tanya, do you have a question? Where can water leak in through these holes? No, air gaps में हमारे पास majority air ही present होती है।
they only allow air to move. ठीक है. So this continuous system of air spaces within the stem allows oxygen to diffuse from the air all the way down to the root. सही है. So एरनकाइमा हमारे पास एक adaptation होती है राइस की. एक हमारे पास जो roots होती हैं they can anaerobically respire. अच्छा, एक और चीज हमारे पास जो इथेनॉल होता है. Now, high concentrations of ethanol are toxic for plant. So अगर हमारे पास anaerobic respiration हम क्या कहते हैं हो रही है, तो डेफिनेटली एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगी तो इथेनॉल अक्यूमुलेशन होगा. वैसे तो हमारे पास जो राइस प्लांट्स होता है उनकी जो सेल्स हैं दे आर टॉलरेंट टू इथेनॉल. टॉलरेंट का मतलब ये है कि वो फॉरेन से क्या कहते हैं, अगर इथेनॉल अक्यूमुलेट हो रहा है तो फॉरेन से वो लिटिल अमाउंट्स ऑफ इथेनॉल आर टॉक्सिक फॉर दैट राइस प्लांट सेल. ओनली व्हेन इथेनॉल इज अक्यूमुलेटेड अ लॉट. इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास हमारी बॉडी में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है सो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन होती है. लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन जब होती है सो आवर बॉडी फील्स फटीग, इट फील्स पेन. अगर आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो आप भाग रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता लैक्टिक एसिड बिल्डअप शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता पेन आपका बढ़ना शुरू होता है या फटीग आपको फील होना शुरू होती है. ऐसा नहीं होता कि जैसे ही फौरन से लैक्टिक एसिड बिल्डअप शुरू होगा आप रुक जाओगे, आप थक जाओगे, आप बैठ जाओगे. आपकी बॉडी एक हद तक पेन को बेयर कर सकती है. एक हद तक वो लैक्टिक एसिड की वजह से जो फटीग आप फील कर रहे हो यू कैन बेयर इट. तो आप फौरन से नहीं रुक जाते जब आप वो फटीग या वो मसल स्पैज्म्स फील कर रहे होते हो, मसल पेन फील कर रहे होते हो. सिमिलरली जो हमारे पास राइस की रूट्स हैं वो इथेनॉल को बेयर कर सकती हैं. दे आर टॉलरेंट टुवर्ड्स इथेनॉल अक्यूमुलेशन. हाउएवर जब बहुत ज्यादा इथेनॉल अक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल अक्यूमुलेट हो जाएगी, दैट इज व्हेन इथेनॉल कैन बी टॉक्सिक फॉर दिस राइस प्लांट. In such a condition, when there is a lot of ethanol buildup in the roots in the rice plant, हमारे पास detoxification of ethanol होती है. Detoxification of ethanol to break down ethanol. जिस तरह हमारे पास लैक्टिक एसिड को हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ग्लूकोज या पायरुवेट, सिमिलरली हमारे पास जो राइस प्लांट्स हैं उनमें अगर बहुत ज्यादा इथेनॉल अक्यूमुलेशन हो जाती है सो दे हैव एन एंजाइम. दैट एंजाइम इज नोन एज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. दैट एंजाइम can break down ethanol so that the concentration of ethanols can go down. Now question ये राइज हो सकता है कि आप लोग बोलो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो थी वो तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ी है in ethanol fermentation. So yes, this alcohol dehydrogenase can synthesize ethanol as well as break it down. So ethanol बनाने के लिए भी हमें alcohol dehydrogenase चाहिए होती है. ethanol को break करने के लिए भी हमें alcohol dehydrogenase चाहिए होती है. So when there is a lot of ethanol accumulation in the rice plant, the rice plant is able to break down this ethanol through alcohol dehydrogenase. चलिए अब मैं क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ जो चैट बॉक्स में आए एंड वन बाय वन आई आंसर देम. ओके. अब मुझे हम ये जो मसल फटीग वाली बात है ना और ऑक्सीजन डेट वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो दैट इज व्हेन आई आंसर योर क्वेश्चन. अच्छा, हमारे इज आस्किंग व्हाई डज राइस प्लांट अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ दे हैव एरेनकाइमा एंड गुड स्टेम ग्रोथ. अच्छा, हमारे पास जो एरेनकाइमा है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली बात है वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू रूट्स है. रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. रूट्स को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाती? बिकॉज रूट्स आर फुल्ली सबमर्ज्ड इन द वाटर. हमारे पास स्टेम की ग्रोथ से जो अपर बॉडी है हमारी राइस प्लांट की उनको ऑक्सीजन मिल रही है. सो एक्सेलरेटेड स्टेम ग्रोथ इज बेसिकली फैसिलिटेटिंग दिस पार्ट ऑफ द राइस प्लांट. तो जो भी हमारे पास राइस प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा है वो बेनिफिट कर रहा है एक्सेलरेटेड स्टेम ग्रोथ वाली अडेप्टेशन से. हाउएवर रूट्स हमारी कभी भी पानी के ऊपर नहीं आएंगी. रूट्स ऑब्वियसली सॉइल में नीचे की तरफ ही इमर्स्ड होंगी. रूट्स वोंट बी अबव द सॉइल. सो हमारे पास रूट्स के लिए दो अडेप्टेशंस हैं. रूट्स की रेस्पिरेशन के लिए, रूट्स की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए.
और वो क्या अडेप्टेशंस है? एक तो ये दैट रूट्स आर अडेप्टेड फॉर anaerobic respiration and they are tolerant to ethanol, and they also have the ability to detoxify ethanol. हमारे पास ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है स्टेम टू द रूट थ्रू द एरेनकाइमा, बिल्कुल करती है। बट वो बहुत, एरेनकाइमा जो होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो ऐसा, अब आप ऐसे इमेजिन करो, एट द मोमेंट आपकी जो नॉस्ट्रल्स हैं वो पूरे एयर में एक्सपोज्ड है एंड यू कैन टेक इन दैट एंटायर एयर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या कहते हैं ब्लॉकेज नहीं है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर पीपल हु हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया, या इवन अगर नॉर्मल इंसानों को भी अगर हम एक क्या कहते हैं क्राउडेड रूम में भेज दें, या अगर हम एक बहुत छोटी जगह पे भेज दें, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, आपको सफोकेशन होती है, ऐसा सब ऑब्जर्व करते हैं दैट इन अ क्राउडेड स्पेस और इन अ स्मॉल स्पेस यू वुड फील सफोकेटेड। व्हाई डू यू फील सफोकेटेड? क्योंकि एयर इतनी ज्यादा नहीं है, राइट? सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी जो एरन काइमा है, ये कोई बहुत बड़े बड़े होल्स नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स हैं। तो इन माइक्रोस्कोपिक होल से थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन जा रही है रूट के पास। सो रूट को ऑक्सीजन मिल रही है कहाँ से? एयर एनकाइमा से, थोड़ी थोड़ी। तो थोड़ी थोड़ी वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, थोड़ी थोड़ी वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। नाउ इज दिस क्लियर टू अमार एंड टू द रेस्ट ऑफ यू? सो एयर एनकाइमा के थ्रू बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन आ रही है, और उस थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन से एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। What would stimulate the ethanol to break down? High ethanol concentration, जब हमारे पास सेल ये रियलाइज करेगा कि ओके ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हमारे थ्रेशोल्ड से, हमारी टॉलरेंस से ज्यादा है, so that is when the cell would get trigger to detoxify that ethanol, to break down that ethanol. So high concentrations of ethanol above the tolerance level is when the ethanol would be broken down through alcohol dehydrogenase. Now is this clear? Any questions? Ethanol is broken down into carbon dioxide and water, I think. I think it is broken down to carbon dioxide and water. I'll confirm, but मेरे ख्याल से carbon dioxide and water में ही break down कर दिया। ठीक है? So that's about it for the rice plants and how they're adapted. एक उनकी adaptation क्या है? Anaerobic respiration in roots. दूसरी adaptation क्या है? Accelerated stem growth, ताकि हमारे पास जो majority rice की क्या कहते हैं सेक्शन है that is above the water, so that वो एरोबिकली रिस्पायर कर सके। रूट्स को एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए उनके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम एरनकाइमा बुलाते हैं। एरनकाइमा आर पोरस air holes in the stem which allow oxygen to pass all the way from the air to the roots through the erenchyma। ठीक है? सो ये हमारे पास राइस प्लांट्स हो गए। द रेशियो इज नॉट एग्जैक्ट, हम न्यूमेरिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितनी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और कितनी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू कितनी एरोबिक और कितनी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है।